آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تمام خداوند کے لوگوں کو، خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں کو سلام بھی کہتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آپ بڑے مبارک لوگ ہو، خدا نے آپ کو فضل بخشا کہ دنیا کی مصروفیات میں سے نکل کر خدا کے فضل کے تخت کے سامنے آئیں، اس کی عبادت کریں اور اس کا زندگی بخش کلام سنیں۔ ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے جو پچھلے اتوار کی عبادات میں یہ مبارک کلام کا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا پہلا باب اور 76ویں اور 77ویں دونوں آیات ہم پڑھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ نجات کا علم، ہم نے موضوع شروع کیا ہوا ہے سوٹریالوجی، اور ہر دفعہ بتاتا ہوں یہ ایک گریک اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی ہے مسیحی تھیالوجی کی، جس کے معنی ہیں علم النجات۔ اور بائبل مقدس میں ہم نے پچھلی عبادات میں سیکھا کہ نجات کا علم جو ہے، جب ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے علم النجات کے معنی ہیں علم المسیح، علم الخداوند یسوع مسیح، کیونکہ وہی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور اس کی اہمیت پر غور کرتے ہوئے ہم نے سیکھا کہ نجات بائبل مقدس کا مرکزی موضوع ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ تمام دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ نجات کے چوگرد گھومتے ہیں۔ تمام نبیوں، پیغمبروں کا پیغام اور ان کو بھیجے جانے کا مقصد نجات ہے۔ تمام نئے عہد نامہ کے خادموں، رسولوں اور موجودہ دور کے خادموں کو چننے کا مقصد ہے کہ گنہگار انسان اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرے، پوری حاصل کرے۔ اور ہم نے سیکھا پچھلی اتوار کی عبادات میں کہ نجات دہندہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ آج ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں، یہ ہے پارٹ 7واں حصہ اس موضوع کا۔ بائبل مقدس میں پہلی بات ہم سیکھتے ہیں، کلام مقدس کے لکھوائے جانے کا مقصد بھی نجات ہے۔ ایک حوالہ پڑھیں گے، باقی لکھنے والے جو ہیں ان کے پاس تصدیق کے لیے حوالہ جات ہوں، پہلے وہ لکھنے والے لکھ لیں۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، 3 باب 15ویں اور 16ویں آیت۔ یعقوب کا عام خط، پہلا باب 18ویں آیت۔ اعمال
की किताब मुकद्दस 13वां बाब 26वीं आयत, रोमियों के नाम पौलुस रसूल का खत 10वां बाब 17वीं आयत। एक हवाला हम जरूर पढ़ें ताकि इस बात की तस्दीक हो। बाकी भी हवाला जात में आप जब पढ़ेंगे ये बयान किया गया है बड़े साफ अल्फाज में कि कलाम मुकद्दस के लिखवाए जाने का मकसद भी रूहों की नजात है। गुनहगार इंसान किस तरह नजात हासिल करे, इसलिए इल्हाम उतरा, इसलिए नबी आए, इसलिए कलाम मुकद्दस को रिटन किया गया, लिखवाया गया, ताकि इंसान नजात हासिल करे, गुनाहों से रहाई हासिल करे, बीमारियों से शिफा हासिल करे, खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाए। उसके लिए हम हवाला जो आपने लिख लिया है निकालेंगे। 13वां बाब अमाल की किताब जो आपने लिख भी लिया हुआ है, और उसकी 26वीं आयत, मैं एक आयत आपके सामने पढ़ता हूं, बाकी जगहों पर भी इसका मकसद यही है जो मैंने बता दिया है। लिखा है, ऐ भाइयों, अब्राहम के फर्जंदो, और फिर ऐ खुदा तरसो, इस नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया। इस नजात का कलाम, फिर जिक्र क्या है, इस यानी वो नजात जो यीशु मसीह के वसीला से आई। इसका मतलब मौजूदा दौर की नए अहदनामा की बात हो रही है। इस नजात, जिस नजात की वो मनादी करते हैं, जिस नजात के बारे में वो जानते हैं, जिस नजात को देने के लिए नजात दहिंदा आया, इस नजात का कलाम जो भेजा गया है। क्योंकि कलाम का लिखवाया जाना, कलाम का भेजा जाना, इसका भी, इसकी अहमियत यह जाहिर होती है कि इसका मकसद भी है कि इंसान जो है वो अपने गुनाहों से नजात हासिल करे, तमाम लानतों से आज़ादी हासिल करे, बीमारियों से आज़ादी हासिल करे, पूरी नजात हासिल करे। इसका मकसद भी यही है। आइंदा हम ये भी सीखेंगे कि पूरी नजात क्या है, लेकिन आज इसका मतलब यह है जो हमने आयत पढ़ी है कि कलाम के लिखवाए जाने का मकसद यह है कि इंसान जो है वो गुनाहों से रहाई और नजात हासिल करे। और कौन सा कलाम? बाइबल मुकद्दस। रोमियों के खत में क्या लिखा है? ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और कोई कलाम का जिक्र नहीं किया, कोई और किसी फिलासफर की किताब का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि और किसी साइंसदान की किताब का जिक्र नहीं किया गया कि वो पढ़ो, उस पर ईमान लाओ, वो आपको नजात का राह। बड़े साइंसदान ने किताब लिखी है, फिलासफर ने लिखी है, वो आपको नजात की राहें बताएगा। ये खुदा का सच्चा कलाम, इल्हाम, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये सच्चा और जिंदा खुदा का कलाम सारा इसलिए लिखवाया गया कि इंसान अपने गुनाहों से रहाई पाए, नजात पाए, खुदा की बादशाहत में दाखिल हो, फिरदौस का वारिस ठहराया जाए खुदा के पाक कलाम के मुताबिक। इसलिए लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला
और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। ये ऐसी मुबारक किताब है कि जो इसको सुनता है, इसकी तालीम हासिल करता है, इसे पढ़ता भी है, इस पर अमल करता है, वो मुबारक है। क्योंकि जब वो पढ़ेगा, कलाम सुनेगा, तो वो आपको निजात का राह दिखाएगा। खुदा का पाक कलाम आपको रिहाई खुदा का कलाम बख्शेगा, आपको कुव्वत खुदा का पाक कलाम बख्शेगा। क्यों? इसलिए कि ये खुदा का इल्हामी कलाम है और अबदी कलाम है और जिंदा कलाम है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि इस पाक कलाम को जरूर पढ़ा करें, इस पर गौर किया करें। अगर निजात चाहिए, रिहाई चाहिए, शिफा चाहिए, आजादी चाहिए, मुखलसी चाहिए, तो इस कलाम को सुने, इस तालीम को सुने, इसी कलाम को सुनाएं, इसी कलाम को सुने, इसी कलाम पर अमल करें, क्योंकि यही सच्ची नजात की राह दिखाती है। हालेलुया। इसलिए इसे खूब पढ़ा करें। अगर आप पढ़ेंगे नहीं और फिर सुनेंगे भी नहीं, फिर तालीम भी नहीं पाएंगे, तो हमें रिहाई नहीं मिलेगी। बाकी हम रसूमात अदा करते रहेंगे, लेकिन अगर कलाम को नहीं सुनेंगे, तालीम नहीं पाएंगे, गौर नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। हम गुलामी ही में ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़हनी गुलामी में, बदनी गुलामी में, रूह की गुलामी में, गुनाह की गुलामी में, शैतान की गुलामी में रहेंगे, रसूमात अदा करते हुए भी। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या करता है? आज़ाद करता है। हालेलुया। जिस तरह लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा के क्या देता है? शिफा देता है। बदनी शिफा, रूहानी शिफा, रूह की शिफा, ज़हनी शिफा, सोच की शिफा खुदा का कलाम देता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमा के शिफा देता है। जो ज़हनी तौर पर बीमार है, नफ्सियाती तौर पर बीमार है, बदनी तौर पर बीमार है, गुनाह के दबार से बीमार है, रूह के बीमार हैं, उनको ये शिफा देगा। इसी का मतलब नजात है। अगर किसी तरह की शिफा चाहिए तो खुदा का कलाम सुने, कलाम पढ़ें, कलाम पर अमल करें, आप हर तरह की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। और खुदा का शुक्र हो इस पाक कलाम के लिए जो रूह कुद्स की तहरीक से बाइबल में लिखा भी हुआ है, लिखवाया गया हमारे लिए। हालेलुया। इसके लिए खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि खुदावन तेरा शुक्र हो, ये कलाम तूने हमारे लिए लिखवा दिया ताकि इस कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, आजाद हो, नजात पाएं, शिफा पाएं और तुझे जाने कि तू कैसा हमारा खुदा है। हालेलुया। इसलिए इस कलाम के लिए जो लिखवाया गया इल्हाम है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं, इससे प्यार करें, इससे मोहब्बत करें। यिर्मयाह नबी कहता है, मैंने तेरे कलाम को नोश किया। जिस तरह बदनी खुराक हम खाते हैं, इसी तरह उसके कलाम की ग़िज़ा क्या करें? लें, खाएं इसे। आपको तकवीयत मिलेगी, आपको कुव्वत मिलेगी, आपको जोर मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको आजादी मिलेगी। अगर अभी तक आजादी नहीं, ज़हनी, नफ्सियाती, बदनी, रूह की, तो कलाम को खाएं, इसे ग़िज़ा समझें, आपको तकवीयत और कुव्वत मिलेगी, हर तरह के बंधन से आजाद कर देगी। और ये कलाम के लिखवाए जाने का कोई मकसद है, इसे पूरा करें। सिर्फ खूबसूरत तरीके से
कलाम को अपने घरों में सजा के ना रखें, बल्कि पढ़ें। एक खादम की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, वो सुना रहा था, इसे इतना पढ़े, इसे इतना पढ़े। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये पढ़ पढ़ के आप क्या जी, ये जो किताब है घिस जाए, जिस तरह मेरी किताब की तू, और मैं चेंज नहीं करता जल्दी से, जब तक पूरी मैं देखता हूँ किस गई है या थोड़ी, यानी वर्कों के लिहाज से खराब हो गया, फिर मैं दूसरी लेता हूं। इतना इसे पढ़े। किसी ने ये कहा, वो भी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि मेरे पास जी पारी साहब 50 साल से बाइबल मुकद्दस है, और वे लो उस तरह दी ये उस तरह मैं के इस तरह ही रहनी है, इनू शेल्फ ते की रखना है, बल्कि संदूक च रख, और जब इस दुनिया से जाओ तो कहना यार आ मेरे नाल ही दफन कर देना, क्योंकि पढ़ी तो है नहीं, चलो नाल चली जाए, तो उस वक्त कोई फायदा होगा जी। किताब जब शादी होती है नए जोड़े को, बड़ी अच्छी मुबारक रवायत है, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि खुदा के खादम भी और माँ बाप भी क्या देते हैं, बाइबल को, ए बेटे बाइबल ले ले, तेन संभाल के रखनी, जिन्नी, हाँ जी, इनू संभाल के रखना है, इनू पुत्र पढ़ना नहीं। भावें अज़वाजी जिंदगी च किन्ने भी गड़बड़ हो जाए, इनू नहीं पढ़ना, ना 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 ना। जिन्निया मर्जी आजमाइश आइया, पुत्र इनू पढ़ना नहीं, उत्ते अच्छी तरह कवर से बंद करके जेब अच्छी तरह बंद कर देना, पढ़ना ना ना। पुत्र तानू ऐस वास नहीं दी कि खराब हो जाए, नो नो नो, संभाल के रखो। फिर ਇਹਦਾ ਭਾਰ बड़ा किते ले जानी नहीं जे पुत्र, ना चर्च च ले जानी जे, ना इनू खोलना है, किड्डा भार है। क्यों जी, असी क्यों नहीं चर्च जाना कि अगे ही बैग जिहड़ा साडे शोल्डरां ते हुंदा ਉਹਦਾ ही बड़ा भार है, तो तोया भी भार पा ली। अगला ही भार नहीं साडे को चुकिया जांदा, अगला भार ही नहीं साडे को मुकिया जांदा। इन्ना भार शोल्डर ते पा के ते असी बाइबल का भी भार अपने शोल्डर ते रखिए ना भाई, ये ते बड़ा भार है। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ की है हल्का है, ते मलाम है, इतना निशान शून नहीं बनने। कितने ईमानदार हैं जो मेरी वीडियो के जरिए से भी बात सुन रहे हैं कि चर्चेस में जाते हैं। मैंने कई दफा कहा, और मैंने तो कहता रहना जब तक मैं जिंदा हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि बाइबल को भी खोलें, बाइबल को भी साथ लाएं, बाइबल को पढ़। कोई एडा बड़ा भार है ही नहीं, वो जोड़ा पर्स शोल्डर च हुंदा है, इन्ना खूबसूरत है, वो तो भी पा लो, कुछ नहीं। इस कलाम को पढ़े, सुने, सीखे, ग़िज़ा की तरह खाएं, क्योंकि यही हमें निजात का राह दिखाता है, यही हमें आजाद करती है। हालेलुया। और अहमियत देखें निजात की कि खुदा के कलाम लिखवाए जाने का मकसद भी क्या है, निजात। और दूसरी एक बात और सीखते हैं इसी 7वें हिस्से में, फरिश्तों को भी निजात के काम के लिए भेजा जाता है। इसकी अहमियत से वाकिफ हूं। इब्रानियों के नाम, पौलुस रसूल का खत, पहला बाब, 13वीं और 14वीं आयत लिख लें लिखने वाले, और मुकाशफा की किताब मुकद्दस 22वां बाब और 9वीं आयत लिख लें लिखने वाले,
لیکن ایک حوالہ ہم ضرور پڑھیں گے. عبرانیوں کے نام نکالیں, پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب. دیکھیں یہ پڑھ کے حالت ہو گئی لیکن پھر بھی میں اسے چھوڑتا نہیں. اس پر ایسے لگتا ہے یہ میرا اپنا تہوار ہے, اس پر کچھ چیزیں میں نے لکھی ہوتی ہیں. عبرانیوں پہلا باب اور 13ویں اور 14ویں دونوں آیات ہی ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دائیں طرف بیٹھ؟ نہیں کہا جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کیا وہ سب, یعنی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے, کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں؟ آگے غور سے سنا, جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں. فرشتوں کو جو نجات کی میراث حاصل کرتے ہیں, ان روحوں کو, فرشتوں کو بھی خدا استعمال کرتا ہے اور پیغام بھیجتا ہے. جس طرح گڈریوں کو پیغام نہیں ملا کہ ڈرو مت, میں تمہیں خوشی کی کہ آج داؤد کے شہر میں کیا پیدا ہوا ہے؟ منجی, یعنی نجات کا پیغام دے دیا. مقدسہ مریم کو بھی کہا تیرے ہاں بیٹا ہوگا, اس کا نام, وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ گناہوں سے نجات دے گا. فرشتے خدمت کرتے ہیں. نجات کے لیے خدا فرشتوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی یہ کچھ لکھا, جو فرشتہ خدا کے بندے سے باتیں کر رہا تھا اور خدا کا بندہ رسول ہوتے ہوئے بھی کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اس کے پاؤں میں گر گیا سجدہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اسی طرح انسان ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں. فرشتے کو اس نے کیا کرنے کی کوشش کی, اور کسی کو یاد ہو کہ فرشتے نے آگے کیا جواب دیا. فرشتے نے کہا خبردار, پولائٹلی نہیں کہا, لفظ لکھا ہوا ہے خبردار ایسا نہ کر. کیوں؟ آگے فرشتہ کہتا ہے کہ میں بھی تیرے بھائیوں نبیوں اور اس کتاب پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں. مجھے سجدہ نہ کر, میں بھی نبیوں کا ہم خدمت ہوں. نجات کے کام کے لیے, نجات کے پیغام کے لیے, نجات کے کام میں مدد دینے کے لیے خدا, اس کی اہمیت ہے کہ خدا اپنے پاک فرشتوں کو بھی استعمال کرتا ہے. کیسی نجات کی اہمیت ہے اور کیسی انسان کی اہمیت ہے کہ وہ ساری چیزوں کو انسان کی نجات کے لیے عمل میں لاتا ہے اور استعمال کرتا ہے. اور آج بھی کئی لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. اس وقت بھی لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے, پرستش کرتے تھے. لیکن کلام مقدس کے مطابق ہم نے پڑھا کہ پرستش کے لائق صرف خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. کلام مقدس میں لکھا ہے, کلسیوں کے خط میں دوسرا باب 18ویں آیت میں لکھا ہے, اس وقت بھی تھا, آج کل بھی اس دنیا میں ہے, کہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کے
जिस तरह मैं कहना मुकद्दसीन की भी बल्कि फरिश्तों की भी इबादत करते हैं। कुलसियों का खात 2 बाब 18वीं आयत में लिखा है, कोई तुमको फरिश्तों की इबादत पसंद करके इनाम से महरूम ना कर दे। फिर इब्रानियों का खात 1 बाब 6 आयत में लिखा है कि ये आयत पढ़ लेना, ज्यादा वक्त नहीं है, कि यहां लिखा हुआ है कि फरिश्ते उससे सिजदा करें। किसको? खुदावंद यीशु मसीह को। वो भी मखलूक है। फरिश्ते, सारे आसमानी लश्कर, सारी कायनात, सारे मुकद्दसीन खुदावंद यीशु मसीह ही को सिजदा करते हैं और उसके सामने ही ललकारते हैं, क्योंकि मुकाशवा की किताब में वाज़े तौर पर लिखा है कि तमजीद, हम, प्रस्तश और कुदरत के लायक खुदा का बरा है। वही इबादत के लायक है, वही प्रस्तश के लायक है, वही तारीफ के लायक है। ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, क्या आसराई नहीं। वही हमद के लायक है। कोई जो मखलूक है, कोई जो इंसान है, कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अच्छा हो, बड़ा हो, रुतबा हो, वो इस लायक नहीं कि उसकी तारीफ की जाए, उसकी तारीफ में गाया जाए। उसकी आज तो लोग, मैं ये भी देखता हूँ, हौलनाक बातें हैं कि लोग इंसानों के भी गीत बना रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, कहता हूँ खुदा ताड़े ते रहम करे। ये दो बड़ा लफ्ज मेरे को कौन है? आपने सुने या मैं सही कह रहा हूं? सुने? इंसानों को खुश करने के लिए, इंसानों की तारीफ करने के लिए इंसानों के गीत गा रहे हैं, कई मुकद्दसीन के गीत गा रहे हैं। दोनों मुजरम ने, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है एक ही नाम परस्तश के लायक है, हालेलुया, उसका नाम यीशु है। और बाइबल मुकद्दस में आपने अहमियत देखी नजात की, इंसान की, कि खुदा फरिश्तों को भी इस्तेमाल करता है हमारी नजात के लिए। कलाम लिखवाए जाने का मकसद भी क्या है? हमारी नजात के लिए। और फिर थोड़ी देर के लिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, खुदामंद यीशु मसीह के कफारा देने का मकसद भी नजात, हालेलुया। जो इन दिनों हम रोजे में हैं और पुराने अहदनामा को पढ़ें तो वो रोजा रखते थे कफारा वाले दिन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, शरीयत की किताबों में अगर आपने पढ़ा होगा, ये उसी से कॉन्सेप्ट भी लिया गया। कफारा वाले दिन रोजा भी रखते और अपनी जान को दुख भी देते थे। और फिर रोटी किस तरह की खाते थे? बेख मेरी शाबाश, फतीरी रोटी खाते थे। और मसीही भी रोजे रखते हैं, और ये रोजे रखने के बाद क्या है, क्या होगा? हैं? क़यामतुल मसीह, हालेलुया। क्या होगा? कफारा, यानी खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बरा है, उसकी कुर्बानी का दिन। उसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी, कफारा दे दिया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कफारा देने का, कुर्बानी देने का मकसद इंसान की गुनाहों से नजात का मकसद था, और कोई मकसद नहीं है। कितनी अहमियत है नजात की।
खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि गुनहगार इंसान क्या पाए, नजात हासिल करे। खुदावन यीशु मसीह ने हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारी लानतों को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे दुख उसने सहे जो हमें सहने चाहिए थे। हम गीत गाते हैं, हाय हाय, वो बंदा पूछे तेरे दुख या मेरे दुख। उसने हमारे दुखों को उठाया, बाइबल को पढ़ें। उसने हमारी फिक्रों को उठाया, बाइबल में पढ़ें। उसने हमारी मुशक्कतों को उठाया, बाइबल में पढ़ें। उसने हमारी लानतों को उठाया, बाइबल में पढ़ें। उसने हमारे गुनाहों को उठाया, इसलिए हमारी लानतों को उठाने की वजह से वो हमारी लानतों की वजह से लानती भी कहलाया। वो लानती नहीं, पाक और मुकद्दस, लेकिन हमारी लानतों की वजह से उस पर हमारी लानतें, मुसीबतें, गुनाह रखे गए ताकि हम हर तरह की लानत से, बीमारियों से, गुनाह से आजाद हो जाएं। और वो हमारी नजात के लिए सब कुछ करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा भी रखा, किसके लिए रखा है जी? अब इसका जवाब दें। खुदावंद शाबाश, खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा अपने लिए रखा जी, कि खुदावंद मैं रोजा रखना, मैनू नजात दे। हैं, मैं बड़ा फसिया, खुदावंद तू मैनू की दे दे, शिफा दे दे। यीशु मसीह ने रोजा भी रखा तो किसके लिए रखा? हमारे लिए, नजात के काम की तैयारी के लिए, कफारा देने के लिए, हमारे लिए आजमाइश पर गालिब आने के लिए उसने सब कुछ दुख सहा, फाका भी काटा, सलीब पर भी चढ़ गया, कीलों से भी जड़ दिया गया, कांटों का ताज रखा गया और जान दे दी और कहा तमाम हुआ। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सलीब पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बेवकूफ आज भी मैं देखता हूं कहीं ना कहीं सलीब पर लटके। क्या खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर कुर्बानी देना, उसमें कोई कमी रह गई है जो हम पूरी करें? सब कुछ खुदा ने किया, यीशु मसीह ने किस लिए किया? हमारे लिए किया, ताकि हम क्या हासिल करें? नजात हासिल करें गुनाहों से, हर तरह की लानत से। जरा अपनी अहमियत समझें कि इंसान को खुदा कितना प्यार करता है। हर चीज को खुदा इस्तेमाल करता है कि जो गुनहगार इंसान है वो क्या हासिल करे? नजात पाए और मेरी बादशाहत में दाखिल हो, और जहां से निकला है मेरे घर से, मेरे घर में क्या आ जाए? वापस आ जाए, फिरदौस में आ जाए। और वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। खुदावंद बहुत प्यार करता है। हमने फरिश्तों का जिक्र भी आज सुना कि फरिश्ते भी नजात के काम के लिए भेजे। तो मैंने इस पर जब गौर किया तो मैंने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा भी, कलाम मुकद्दस में लिखा भी है, मुकाशवा की किताब 12वें बाब में लिखा भी हुआ है, 9वें बाब में, कि वो ही बड़ा अजदहा और वो ही पुराना सांप इब्लीस और शैतान जो कहलाता है वो, और उसके साथ उसके फरिश्ते। तिहाई हिस्सा शैतान ने ना सिर्फ खुदा की मुखालफत की
बल्कि अपनी पार्टी में कुछ फरिश्तों को भी क्या कर लिया, मिल गया। बाकी फरिश्ते भी शैतान के साथ मिल गए और उसने मिला लिया। आज भी कभी कभी बुरी जो रूह की तस्वीरें हैं, आज भी कुछ लोग मिल जाते हैं बुरे लोगों के साथ बुरे लोग मिल जाते हैं। एक मेरी बहन यहाँ बैठी है, उसने मुझे बड़ी एक मिसाल दी कि खादम कलाम सुना रहा था, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उसने खादम कलाम सुना रहा था, उसने कहा जितने ड्रग माफिया है वो जिस मुल्क में उन्हें जमा कर दोगे, रख दोगे भी है सारे फलां मुल्क से भेज दो, वहीं सारे के सारे ड्रग माफिया के जमा हो जाए। अब उन्हें सजा दी जाए फलां मुल्क चले जाओ, तो सब के सब वो उसी मुल्क में आ जाएंगे, क्योंकि वो सब के सब एक जैसे हैं। उन्हें उसी तरह की कंपनी चाहिए, उसी तरह की उनकी स्पिरिट है, उसी तरह की उनकी रफाकत है, और उसी तरह वो खुश रहते हैं, उन्हीं में खुश रहेंगे। तो शैतान के साथ जो अजदहा पुराना सांप, कभी कभी मैं लोगों को बताता हूं कि सांप वाली जो चीजें हैं, कपड़े पर भी सांप अजदहा है। कुछ लोग तो अजदहा की बल्कि क्या करते हैं, यस, परस्तिश करते हैं। तो कुछ लोग बड़े डेकोरेशन, ऊपर सांप बना हुआ है, टी शर्ट ऊपर सांप बना हुआ है, अजदहा बना हुआ है। मैं आज आपको भी ये कहता हूं आज फिर कि ऐसे जो ड्रेसेस हैं, ऐसी चीजें जो डेकोरेशन की चीजें हैं, जिन पर अजदहा और सांप हो, हमें अपने बच्चों को हरगिज़ लेकर नहीं देने। हाँ हाँ हाँ, कड़े भी और रिंग भी, बिल्कुल ठीक है, और जेवर भी, है ना। लेकिन बाइबल में ये किसकी तशबीह है? लिखा है वो अजदहा, वो पुराना सांप जब गिराया गया तो उसके साथ फरिश्तों को भी, ये फरिश्ते जो है ये ही है बदरू हैं, इनकी भी बड़ी आपस में एक हुकूमत बनी हुई है। जो जनाब कोई जनरल है, कोई कर्नल है, कोई छोटी बदरू है, कोई बड़ी बदरू है, कोई जनाब वो तब्दील करके आ जाती है, रात को डराती है, जो मर गया है उसकी शक्ल में आ जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें सीखने वाली है। जो हमारे रिश्तेदारों की शक्ल में आ जाए और डराए, सानू मंजी तो थले सुट दे, वो साडा रिश्तेदार, रिश्तेदार डराएगा, कहेगा तेन पूछ लेना, उदों ते वक्त नहीं मिलिया, हुण ते तेनू मैं डरावा ही डरावा। खास कर नो कवे सस नू ते मैं अज डरावा ही डरावा, ते सस कवे मरी तेनू उदों ते नहीं मैं डराया, हूं तेनू डरावा ही डरावा। बीवी ने कहना तू मेरे ते बड़ा जुल्म किया, हूं तेनू मैं छड़ना नहीं हूं। तो शौहर बेचारा पादरियों को लांदा, मेरी बीवी ना आंदी बड़ी डरांदी है, कि मैं तू ओनू पहले डरांदा रहे। ये शैतान शक्लें बदलकर घरों में क्या डालना चाहता है? लड़ाइयां और गलत फहमियां, और लोग खवातीन खासकर बाबे कहते हैं, बाबों के पास जाते हैं ना, जो बाबे होते हैं दम फूंकने वाले, और जादूगर, शाबाश जादूगर जाते हैं, हाँ जी
وہ کہندا ہے بس تیرے گھر ایک عورت ہے. ان عورتاں تے دو تین ہوندیاں تے لڑائی بھی ہوندی ہے ننان پرجائے دی سس نو دی اور کدی لڑائی ہوندی دران ایک جڑی عورت ہے نا انہیں کہنا وہ بابے ہوراں نے صحیح دسیا جی بابے ہوراں نوں پتہ ہے تہاڈی نفسیات دا انہیں کہنا ایک عورت ہے انہیں تیرے تے کیتا تے تینوں کچھ کھوا دیتا تینوں سمجھ نہیں کاج لڑائی زیادہ پئی یا گھڑی ہے انہوں نے گھر جا کے ایک دوسرے نے انج گھور کے ویکھنا ہے ہاں تو مڑ کے وہ ہاتھ دی چیز بھی نہیں کھانی پاویں بھوکے بیٹھے رہو انہیں کہنا کھایا نہیں میں نوں بھوک نہیں یہ گرے ہوئے فرشتے شیطان کے ساتھ نافرمان فرشتے جب گر گئے اب آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا وہ نیچے گرے خدا نے ان گرے ہوئے فرشتوں کو نہیں اٹھایا لیکن جب آدم گر گیا وہ خود نیچے آ کے اس نے آدم کو اٹھا دیا. مذہب یہ ہے کہ زمین سے اوپر آسمان کی طرف جانے کی کوشش لیکن مسیحیت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان سے نیچے آ گیا ہے. وہ جب نیچے آتا ہے آسمان بن جاتا ہے جب نیچے آتا ہے فردوس وہ بن جاتا ہے جب نیچے آتا ہے جنت بن جاتا ہے کہتا ہے تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں جس گھر میں آ جائے جس زندگی میں آ جائے جس رشتے میں آ جائے وہ فردوس کی طرح ہے میرا گھر میری جنت. اور خداوند یسوع مسیح آپ نے اپنی اہمیت دیکھی فرشتے گرے اٹھایا کوئی موقع دیا نو لیکن جب انسان گر گیا وہ آپ ہی نیچے گر گیا. میں بڑی گہرائی میں گیا. ایک دفعہ میری وائف بتا رہی تھی کہ اولاد ایسی ہے کہ جب بچہ گرے تو ماں ایسا محسوس کرتی ہے میرا ایک کوئی بدن کا حصہ گر گیا اور ماں باپ جانتا ہے جب اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر بچے کو درد ہو رہا ہے میں نے بھی باپ کی حیثیت سے فیل کیا ہے کسی بچے کو تکلیف ہوئی مجھے ایسا لگا میں نے کہا یاسمین ایسا لگا جیسے یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ خدا کی طرف سے کنیکشن ہے خدا کی طرف سے ایسا کنیکشن ہے کہ ماں باپ کو ایسا فیل ہوگا. ہمارا خدا جس نے ہمیں اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا ہمیں زندگی کا دم دیا پھونکا اپنی شکل شبیہ پر بنا کے اور اپنے ہاتھوں سے بنایا باقی سب کو کہا ہو جا ہو گیا. کتنا وہ جب انسان گرا خدا کو ایسا لگا جیسے میرے بدن کا حصہ گر گیا ہے اور اس کو اٹھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح خود آ گیا اور اس نے آ کے اٹھا لیا اور پھر کہا میرے گھر میں واپس آ جاؤ فردوس میں واپس آ جاؤ. اور آج بھی خدا بے چین ہے آج بھی خداوند یسوع مسیح پکارتا ہے اے محنت اٹھانے والوں بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آ جاؤ میں تو نیچے آ گیا ہوں آپ کے لیے آپ میرے پاس آ جاؤ تاکہ تمہیں آرام ملے. آپ بڑے قیمتی ہو
खुदा की निगाह में आपकी बड़ी वैल्यू है। खुदा आपको आपकी सोच से ज्यादा प्यार करता है। उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया हमारी निजात के लिए। वो गमज़दा हो गया हमें शादमानी देने के लिए। उसने दुख उठा लिए ताकि हम दुखों से आज़ाद हो जाएं। वो आज भी हमारी फिक्रों को उठाता है, आज भी हमारे दुखों को उठाता है, आज भी वो हमें प्यार से अपने पास बुला लेता है। अपनी वैल्यू को जानते हुए अपने खुदावंद यीशु मसीह से लिपटे रहें, उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तश करें, उसे जलाल दें, उसकी तारीफ करें और जानें कि हमारा नजात दहिंदा कौन है। जानें कि हमारी निजात के लिए खुदावंद ने क्या क्या किया है और शुक्रगुजारी से भर जाएं। ये जानते हुए खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।